मैंने आपको अपनी अर्लियर क्लासेस में सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसमें डिफरेंसेस, उसके टाइप्स और डिफरेंसेस बताए थे। आफ्टर दैट वी डिस्कस गोल्जी apparatus. Golgi apparatus is a single membrane bound organelle. ये कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसकी डिस्कवरी जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। Therefore in the honor of Golgi, in the honor of Golgi, this organelle is called Golgi body, called Golgi body or Golgi apparatus or Golgi apparatus. Golgi apparatus. It is called as apparatus as it represented a set of systematically arranged structures. Golgi apparatus is made up of membranous bowl-like vesicle or cisternae. These cisternae are arranged parallelly, one above the other. In plant cell, Golgi body is known as dictyosome. प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। In a Golgi apparatus, there are 4 to 8 such cisternae. There are 4 to 8 cisternae. These are connected to each other. Each other and also to endoplasmic reticulum.
and also to endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. After that, we discuss the function of Golgi apparatus. Or first, we discuss structure of Golgi apparatus. As you see, the structure of Golgi apparatus. As you seen in figure, as you seen, these are the unit membrane. Unit membrane. Unit membrane, and these are the cisternae. These are the secreted vesicle, and these are the released vesicle. This is the structure of Golgi body. After structure of Golgi body, we discuss function of Golgi apparatus. Function of Golgi apparatus. Function of
Golgi apparatus. The most important function of Golgi apparatus is packing of the material synthesized by इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिंथेसाइज मटेरियल होगा उसको ये क्या करेगा, पैकिंग का काम करता है। गोल्जी बॉडी पैक्ड द रिलीज्ड मटेरियल बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and some other functions are just like storage of material in vesicle, storage of material in vesicle, storage of material in vesicle. Second, modification, फर्स्ट टाइम काम क्या करता है, स्टोरेज करता है मटेरियल का वेसिकल में। फिर क्या करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोर्ड मटेरियल, उसको मॉडिफाइड करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोर्ड मटेरियल, stored material. After that, packaging of these substances in a special vesicle, vesicle. That means the released material by endoplasmic reticulum, first Golgi apparatus is stored as a material in vesicle, then after it modified stored material and then packaging them in a special vesicle. These are the function of steps function of Golgi apparatus. After Golgi apparatus, we discuss third cell organelles, lysosomes. लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल सेल ऑर्गेनेल है। क्या है ये, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स। ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और कैसा है, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल है। और दूसरी बात की जाए, सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो इसके पास क्या होता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइजिंग और डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग और डाइजेस्टिव एंजाइम are found in single membrane bound organelles, single membrane bound organelles। इस ऑर्गेनेल्स में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं या हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम बहुत ही पावरफुल होते हैं। दीज एंजाइम्स आर वेरी पावरफुल और लगभग जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं सबको ब्रेक डाउन करने की
इनके पास पावर होती है। lysosomes have very powerful enzyme which are capable in breaking down almost all organic substances, breaking down almost all organic substances. The enzyme of lysosomes are produced in RER. Lysosomes are spherical to irregular in shape and size. लाइसोसोम होता कैसा है? स्फेरिकल बॉडी होती है जो इरेगुलर होती है, शेप और साइज इसकी वैरी करती है, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो जो लाइसोसोम है ये कैसा होता है? स्फेरिकल बॉडी होती है। लाइसोसोम आर spherical टू इरेगुलर। स्फेरिकल भी हो सकता है कि उसका कोई शेप भी ना हो। इरेगुलर इन शेप एंड vary in different cells. लाइसोसोम जो होता है ये काम क्या करता है कि इसका फंक्शन क्या है? मेन देखा जाए तो लाइसोसोम का सेल में जो फंक्शन है वो कार्य करता है, जो भी रेसिडुअल सेल्स के अंदर बचे रहते हैं उनको डाइजेस्ट करके उनकी क्या करता है? क्लीनिंग करता है। लाइसोसोम हेल्प टू keep the cell clean by digesting the worn out cell organelles. Lysosome also digest any foreign material. Any foreign material entering the cell, bacteria and food.
bacteria and food. In unicellular organism like amoeba, the intracellular digestion of food material takes place with the help of lysosome. In unicellular organism like amoeba, the intracellular digestion digestion take place with the help of lysosome. Whenever cell gets damaged during disturbance in metabolism of cell, the lysosome may burst into the cell. In this condition, enzyme digested their own cell. So, the lysosome is also known as suicidal bags of the cell. It is also known as lysosome is also known as suicidal wax of the cell. Suicidal bag of the cell. After that, lysosome, we discuss mitochondria. Mitochondria double membrane bound ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल इन यूकैरियोट. इट इज most important type of cell organelles in eukaryotic cell. In eukaryotic cell, the energy required for performing various life processes is produced in mitochondria. जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. इट इज़ कॉमनली called as
पावर हाउस ऑफ द सेल। ये काम क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, दैट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया, this energy is produced in the form of ATP. In the form of ATP. What ATP denoted? ATP means adenosine triphosphate. ATP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी को और कहा जाता है करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी का जो सेकंड नेम है, इसे करेंसी ऑफ सेल या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। करेंसी ऑफ द सेल, इसे करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आफ्टर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया we discuss or we draw the structure of माइटोकॉन्ड्रिया। चूँकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग कैसे है। इसके पास इट हैव ओन DNA and inside the membrane, inner membrane, it is outer membrane and this is inner membrane. इसके अंदर मैंने बताया आपको इसका ओन DNA होता है। क्या होता है? ओन DNA होता है। DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें छोटे छोटे
राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स। और साथ में देखा जाए तो ये अंदर की तरफ ये धंसा हुआ है पार्ट है, इनसाइड इन्वेजिनेटेड है, उसको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और उसी क्रिस्टी के चारों तरफ इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में लगे रहते हैं, जिन्हें बोला जाता है ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। ऑक्सीसोम्स आर F1 particles। F1 particles। अगर हम इस F1 पार्टिकल्स या क्रिस्टी का डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह का बना होता है। डबल मेम्ब्रेन होती हैं इसमें। हैव डबल मेम्ब्रेन। और इस पर छोटे छोटे ऑक्सीसोम लगे होते हैं इस तरह से। ये ऑक्सीसोम ऐसे इस पर लगे रहते हैं, इसी को बोला जाता है F1 पार्टिकल। अगर हम केवल और केवल F1 पार्टिकल की बात कर लें, इसकी बात कर लें, ये तो ऑक्सीसोम हो गया या F1 पार्टिकल्स हैं, तो इसकी अगर हम बात करें केवल और केवल इसकी बात करें तो ये इस तरह से दिखाई देता है। ये इसका हेड है और ये इसका स्टॉक है और ये इसका बेस है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस है और इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्या है? क्रिस्टी है। क्रिस्टी पर क्या लगा होता है? F1 पार्टिकल। क्रिस्टी पर क्या लगा होता है? F1 पार्टिकल लगा होता है। These are the all about structure of mitochondria. After that, we discuss plastid in our next lecture. Plastid. Thank you.